बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हस्बैंड जेन्युइनली सपोर्ट करता है तो वाइफ सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग फील करती है। सपोर्ट सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से भी दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी वाइफ को या वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो दोनों कभी जिंदगी में ऊपर जा ही नहीं सकते। रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। सपोर्ट इज द एक्शन, इक्वालिटी इज द गोल। अगर प्रोग्रेस चाहिए तो साथ चलना होगा, नॉट अहेड, नॉट बिहाइंड, बट टुगेदर। अगर रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है, रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लव, केयर, एवरीथिंग कम्स लेटर। बॉस, फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट। सो वंस यू हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, देन इट्स गुड। Some people just do a job, but some people truly makes a difference. Today's guest is someone who has changed thousands of smiles. Dr. Sharad Kumar is a gold medalist, orthodontist and runs Smile Please Dental Clinic in Vashi and Nerul. From braces to Invisalign, he helps people smile with confidence. But he's not just a dentist. He's also been a radio voice. For him, a smile and a strong voice both matters. A caring doctor, a family man, and someone who believes every smile has a story. So, welcome, Dr. Sharad, and thank you for Karishma. joining this podcast for Women's Day special. You're always welcome. So, can you tell us about your journey? I'm a very humble person. Of course. Started my schooling with one of the best convents in India called Lamartine College in Lucknow. And of course, then my graduation, post-graduation from this beautiful city of Mumbai. And I'm extremely grateful for both the cities for bringing me up to this point. And then, of course, I'm a super specialist in orthodontics and super specialist in Invisalign, braces, full mouth rehabilitations, and so many things that we can do in dentistry. Right. And tell us something about your RJ experience. That was a hobby, of course. I've been gifted with a good voice by God. So, of course, I utilized it. I was a radio jockey with All India Radio with 107.1 FM. And I did that for 8 years, from wow. 2001 to 2007. Must have done more than 700-800 shows and done so many recordings for Discoveries and featured in many advertisements. So that was a hobby that I did along with when I was busy getting gold medals from my academic career. That's nice. So, क्या शो का नाम था अगर कोई उस टाइम पे अगर recall शो का करना नाम चाहे उस तो? समय इट वाज अ वेरी फेमस शो इन द नाइट दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम 12 to 2. आप हमारे रेडियो की लैंग्वेज में कहेंगे तो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दिल दीवाना, बिल्कुल और बिल्कुल शरद के साथ. Wow. So this was the tagline which I had at that time. Nice. So the show was titled Dil Deewana, and Okay. We had very beautiful songs that we used to play. There was a question that we used to have every time in the show that people used to answer, and we used to have callers coming in and SMSs coming in, and it was a wonderful, absolute fun moments that we had during that time. Nice. And what about your family? Family, my parents, of course, they are from Lucknow. We are from Lucknow, and then I've been staying in Mumbai for more than 30 years now, and quite amazing journey that we have. I have a wife. Her name is Dr. Divya Gupta. She's a doctor herself, and 2 children. One studying in 10th standard. One is in 8th standard. Both of them are studying very well. Nice. So sweet. So, मैं भी पूछना चाहूँगी क्योंकि Women's Day स्पेशल है Yes, of एंड बहुत सारे एपिसोड में मैंने एक सवाल सेम पूछा है. मैं आपको थोड़ा सा उल्टा पूछना चाहूँगी कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई वुमेन होती है जो इंस्पायर करती है. आपने किसको इंस्पायर किया हुआ है, मुझे वो जानना है. ऐसे कायदे से देखा जाए तो बहुत सारे लोग, जैसे कितने सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ जो लाइक आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 25 इयर्स. सो ऑलमोस्ट इट्स 25 साल की जर्नी में कम से कम 40 से 45 या अराउंड 50 डॉक्टर्स मस्ट हैव कम एंड वर्क विद मी एज माई एसोसिएट, माई कंसल्टेंट्स. सो उनसे इतना कुछ सीखने को भी मिला, बट काफ़ी कुछ उन्होंने भी इंस्पिरेशन
मेरे से भी ली होगी फॉर श्योर अबाउट हाउ डू वी कीप पेशेंट सेंटरिंग अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट्स, कि पहले पेशेंट के बारे में सोचना, उसके बाद कमर्शियल एंगल सोचना, या उसके बाद फिर उसी हिसाब से पेशेंट्स के बारे में ही बेहतरीन तरीके से सोचकर ट्रीटमेंट प्लान्स डिसाइड करना, एंड ट्रीट इट मोर लाइक अ वर्शिप. दैट्स सो मच, आई एम श्योर ऑफ इट कि कितने सारे जो डॉक्टर्स रहे होंगे हमारे साथ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इस बारे में. वो हैं प्लस सो मेनी पीपल दैट आई मस्ट हैव मेट इन द सोसाइटी. कहीं ना कहीं तो लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए होंगे फॉर श्योर. Definitely. So, as you work on building confident smile, confidence कितना important है हर एक women के लिए in today's world? कॉन्फिडेंस चेंजेस एवरीथिंग. एक कॉन्फिडेंट वुमेन वो रूम में अगर एंटर करती है तो एनर्जी चेंज हो जाती है पूरी तरीके से. आई हैव सीन इन प्रैक्टिस, जब स्माइल ट्रांसफॉर्म होती है, पोस्चर, वॉइस, पर्सनालिटी सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और कॉन्फिडेंस इज द की मैडम, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा. Right. लोगों को लगेगा कि यू आर नॉट नोइंग अबाउट योर सब्जेक्ट. और जहां आपने अगर रुक रुक के बोलना शुरू किया या आपने हकलाना शुरू किया चीज के ऊपर कि ओके आई नो इट एंड नहीं आ रहा है और वो दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो वहीं पे जो है सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. तो जहां आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वहां पे पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पीपल शुड बिलीव इन यू. Right. दैट मैटर्स. Nice. So, as you are a voice artist and communicator, how can women use their voice more powerfully in the society? बाय स्पीकिंग विदाउट अपॉलॉजी. अपनी बात क्लैरिटी और कन्विक्शन से रखना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात अपने दिल से नहीं रखेंगे तब तक कोई भी आपकी बात क्यों सुनना चाहेगा. Correct. ऐसे तो लोग 100 चीजों में 100 लोगों को सुनते हैं. जब तक आप अपनी बात अपने मन से नहीं रखेंगे तो कोई क्यों सुनेगा आपकी बात. एक बहुत सिंपल Right. सी चीज है. और भले ही आप घर पे हो, बोर्ड रूम्स में हो, आपकी आवाज और जिस तरह से आप बात करते हैं, जो आपके बात करने का लहजा है, हर चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है. और जिस भावना से आप कोई भी चीज को व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है हर एक के लिए. कहीं उससे आप दुश्मन भी बना सकते हैं, उससे कई सारे दोस्त भी बना सकते हैं. Right. So, as a leading orthodontist, आप women's को कैसे देखते हैं as they are evolving in healthcare and dental industry? The change is amazing. आज women सिर्फ practitioners नहीं हैं, they are clinic owners, academicians, researchers. Dentistry में especially, I see more women choosing specializations like orthodontics and excelling beautifully. And they are leading from the front. आज मैं कितने सारे ऑर्थोडोंटिस्ट को जानता हूँ, वो आर लेडीज, एंड दे इंस्पायर्स मी सो मच दैट यू कैन नॉट इमेजिन. भले ही हमारे कोई भी फोरम्स हो या कहीं पे भी हो, तो जो लेक्चर्स हमारे फीमेल कलीग्स लेते हैं और जो लेडीज लेते हैं, दे आर इक्वली गुड, दे आर मच बेटर देन एक्चुअली. दे आर लाइक फैबुलसली आउट देयर. सो हाउ डू आई डू एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू? इट्स एब्सोल्यूट इक्वल. Nice. So, ऐसी कौन सी qualities हैं which you feel women bring uniquely to leadership and patient care? एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अटेंशन टू डिटेल. जितना बारीकी से आप एक किसी भी मुद्दे को आप ध्यान से देखते हैं और उसको समझते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है. इन ऑर्थोडोंटिक्स पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, कंफर्ट भी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए. और women naturally create that safe environment, especially for children and anxious patients. हमारे कितने सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि एक्चुअली एक बार को समझते हैं कि उनको सिर्फ एक लेडी डॉक्टर ही चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि वो ही उनको समझ सकती है. सो वहाँ पर ये बहुत मैटर कर जाता है कि किस एम्पैथी से कोई भी विमेन डॉक्टर जो कि एक पेशेंट्स को देखते हैं. स्पेशली मेनी टाइम्स वी हैव फीमेल पेशेंट्स हु आर एक्चुअली वेरी स्केर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, या फिर छोटे बच्चे होते हैं. They always look for a lady only for empathy. Probably is the voice, the way of talking, the soothing voice that they use, and they make them very happy. अभी ये तो हो गया प्रोफेशनली जो भी आप बोल रहे हो. पर्सनल लाइफ में हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर हस्बैंड टू एक्टिवली सपोर्ट देयर वाइफ्स इन देयर ड्रीम्स एंड करियर्स? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब हस्बैंड जेन्युइनली सपोर्ट करता है तो वाइफ सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग फील करती है. सपोर्ट सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से भी दिखाई देता है. क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी वाइफ को, या वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो दोनों कभी जिंदगी में ऊपर जा ही नहीं सकते.
कभी भी जिंदगी में आपने किसी भी कितने भी घर को आप देखिए, जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तभी दोनों एक दूसरे को ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं। राइट, सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी संभालनी होती है, उन्हें किस तरह से बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ को? जितना काम हस्बैंड का इंपॉर्टेंट है उतना ही वाइफ का इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जितना वाइफ का इंपॉर्टेंट है उतना हस्बैंड का इंपॉर्टेंट है। राइट। द बेसिक की वर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते हैं तो आई एम श्योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो हैप्पी, राइट। एंड बोथ ऑफ यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो आज के डेट में वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब टॉपिक्स बहुत ट्रेंड पे चल रहे, बहुत बातें होती है उस पर। इक्वालिटी को लेके आपका क्या टेक है? देयर इज नो इक्वालिटी, women are much more higher than men, so equality चांस तो ही फिर नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए टाइम तो लगेगा। फिर if women are more higher than men तो फिर क्या कर सकते हैं? इक्वालिटी का सवाल ही नहीं इक्वालिटी का है। सवाल ही कहाँ? Correct. Very well said. Very well said. So now this is about a husband-wife story. Now you said you have 2 sons, right? Yes. So आप उन्हें ऐसे कौन सी चीजें सिखा रहे हैं to value and respect other women? Children observe more than that they listen. जो भी वो घर में देखेंगे वही वो सीखेंगे। Correct. This is what I have learned from my father. This is what my children will learn from me. देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि घर में रिस्पेक्ट देखेगा बच्चा तो वो नेचुरली सीखेंगे। द वे आई स्पीक टू द मदर, टू द फीमेल कलीग्स, टू द पेशेंट्स, जो रिस्पेक्ट हम दिखाते हैं, जो किसी भी तरीके से हम जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वही उनके लिए रियल लेसन्स होते हैं। Right. उसके आगे वो क्या सीखेंगे? क्योंकि जिस तरह का हमारा आचरण रहेगा, जिस तरह से हम लोगों से बातचीत करेंगे वही सीखने वाले। Correct. तो वी हैव टू बी द रोल मॉडल्स। हमारे हाथ में टोटल। Right. So gender equality के बारे में आप अपने बच्चों को कैसे सिखा रहे हो? We need to talk openly about dignity, consent and equality. Boys को ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेंथ का मतलब डोमिनेंस नहीं होता। रियल स्ट्रेंथ इज रिस्पेक्ट, एंड जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, रिस्पेक्ट इज द कीवर्ड। अगर रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है, रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लव, केयर, एवरीथिंग कम्स लेटर। बॉस, फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट। So once you have respect for others, then it's good. Nice, very well said. So this Women's Day special हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप विमेन के लिए अभी क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे जो उन्हें इंस्पायर कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके अपनी मैरिज लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी डे टू डे लाइफ में भी? आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, कभी कभी बस याद दिलाने की जरूरत होती है। डोंट श्रिंक योर सेल्फ टू फिट इन टू एनीबडीज एक्सपेक्टेशन। Nobody is worth it. Grow fully, unapologetically. बिल्कुल जिंदगी में आगे बढ़ो और बस किला फतेह कर लो। So बहुत अच्छी बात की आपने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी इंडिपेंडेंस के बारे में। आज की डेट में और पहले के ज़माने में अभी क्या एवोल्यूशन आ चुका है विमेन के लिए, खास करके इंडिपेंडेंस को लेके? The women today are more independent than what we had earlier. But I don't know, like since I have seen of my life, I've always seen women doing excellent in their lives. So I don't know what you're talking about. I'm sure that they've been doing amazing. नहीं, I I've meant grown up कि, looking at strong women in my life. पहले एक टाइम हुआ करता था जहाँ पे औरतों को मौका नहीं मिलता था, ना बोलने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता था, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती थी। आज भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, उन्हें फैमिली को प्रायोरिटाइज इतना कर देते हैं कि उन्हें अपना करियर के बारे में सोचना इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? टाइम्स हैव चेंज्ड, सो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आज लेडीज़, औरतों के लिए उतनी ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि किसी भी एक आदमी के लिए हैं। राइट। सो आपको आगे बढ़ना है और अपना हुनर दिखाना है, बस दैट्स इट। इक्वालिटी इज देयर राइट नाउ। इन फैक्ट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ। आप सब कर सकते हैं, प्लीज डू इट। बस करने की जरूरत, बस करने की जरूरत। राइट। सो अभी तो बहुत अच्छा मैसेज आपने विमेंस डे के लिए ऑल द लेडीज़ को आपने दिया हुआ है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप टू मेन अबाउट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल अलाइज इन विमेन एम्पावरमेंट? Respect is the foundation. This is what I strongly believe. Support is the action, equality is the goal.
अगर प्रोग्रेस चाहिए तो साथ चलना होगा, नॉट अहेड, नॉट बिहाइंड, बट टुगेदर। जब तक साथ नहीं चलोगे तब तक एक दूसरे से आगे भागते रहने में कोई फायदा नहीं है। तो अगर करना है तो साथ में करना। तो आपको कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? So first, remember my name. I'm Dr. Sharad Kumar. I'm MDS in orthodontics, and I have two clinics. One is in Vashi and one is in Nerul in Navi Mumbai. And we're located at one of the most best locations in Vashi. There's a very famous restaurant called Navratna Restaurant. Right. The clinic is just above that. So, and of course, you search for Dr. Sharad Kumar in Vashi on YouTube. I'm sure you'll be getting all the reasons. I have so much of content there. Yes, thank you so much, doctor. Thank you so much. Such a nice session it was. There is so much to learn and be inspired by Dr. Sharad Kumar. Like he very well said, respect is the foundation, support is the action, and equality is the goal. So happy Women's Day to all the lovely ladies out there. And here is Karishma signing off. But before that, please do like and share this video and subscribe to Logically Loud for more such inspirational stories. इस सेशन को खत्म करते हुए एक आखिरी शायरी में डॉक्टर साहब से जरूर सुनना चाहूंगी और डेफिनेटली आपको भी सुननी होगी. सो प्लीज डॉक्टर साहब एक शायरी बिल्कुल, हो एक जाए. शायरी हो जाए। कभी माँ बनकर प्यार लुटाती है, कभी बेटी बनकर घर को सजाती है, खुद के सपने पीछे छोड़ देती है, पर सबकी खुशियों में भी मुस्कुराती है। उसके हौसलों में जीत का अंदाज है, उसकी खामोशी में गहरा सा राज है। उसके हौसलों में जीत का अंदाज है, उसे कमज़ोर समझना गलती होगी, वो हर मुश्किल का जवाब है। वो रुकती नहीं है, वो झुकती नहीं है, हालात से कभी डरती नहीं है, हर दिन नई कहानी लिख जाती है। वो औरत है, हार मानना नहीं जानती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, वेरी वेल सेड एंड बहुत अच्छी शायरी दी आपने एंड इतने अच्छे से इसको एंड किया उसके लिए थैंक यू सो मच. Thank you so much, Karishma. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much for inviting me for such a wonderful event. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली हम ऐसे और पॉडकास्ट करते रहेंगे इन फ्यूचर. अरे डेफिनेटली करना है यार, बहुत मजा आएगा.